Hello everybody, my name is Mahek. My name is Arpan. So basically this is our first episode of Dil Ki Baat Mahek और Arpan Arpan के के साथ. Exactly. So I have been here for more than 7 years in Canada and she's been here 3 years. Exactly. So हमारा जो main motto है यहाँ पे, we just want to share our experience, but at the same time how it can be useful for the newcomers in Canada. जैसा कि हम देख सकते हैं अर्पण की यहाँ पे इंडिया से कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं every year, but we are seeing a big drop these days, right? Like कि opinion Canada अच्छा नहीं है, this and that, right? So I would like to know कि how do you feel so far? You have been here like more than 3 years now. How do you like it? To be very honest, nowadays it's kind of hard for students to survive. I'll be honest with you, क्योंकि ये होता है ना कि जैसे अभी पहले के टाइम काम जल्दी मिल जाता था, यू नो, यू जस्ट अप्लाई फॉर अ जॉब तो राइट अवे आपको उधर से रिप्लाई आ जाता था कि या कम फॉर द जॉब. बट अब हम लाइनों में लग रहे हैं. आई हैव शूट अ लॉट ऑफ वीडियोस. Exactly, मैंने आपकी टिकटॉक देखी थी. You're following me. So वो मेरी वीडियो का बनाने का भी पर्पस यही था कि so that I can let people know जो इंडिया में हैं, they are thinking to come here, they should know the consequences, right? They should know the reality. क्योंकि it's not all about the Mustangs and all that, you know. It's of course Mustangs are also here, but ये चीज़ भी है कि you know the problem, मतलब हर एक coin की two sides हैं. Exactly. Good and best. और you know So in these 3 years, how do you feel कि जब आप इंडिया से आए थे, आपकी एज के अकॉर्डिंग, if I'm not wrong, you're 21, right? तो आपकी एज के अकॉर्डिंग, could you experience these all things when you were back home? Could you be the person who you are today, like, you know, personality wise or experiences wise, like, you know, do you really think कि आप वो हो सकते थे अगर आप इंडिया में होते? और do you think is it very easy to, like, you know, change the place and हमें एकदम Mustang हो जाए? I see. That's a good question actually. बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी confusions होती हैं कि यार यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए. They are just 50-50, right? तो मेरा जो एक्सपीरियंस मैं अपना बताऊंगी. मेरा जब मैं यहाँ पे आई, I moved here. I see a lot of डिफरेंट सिनेरियोज. बहुत सारी चीजें थी जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी जो मेरे साथ होने वाली है, यू नो. डू यू माइंड शेयरिंग की लाइक क्या मतलब स्टिल क्या, क्योंकि ना यार जो नए बच्चे हैं एक्चुअली उनको आइडिया यही चाहिए व्हाट्स द रियलिटी, बिकॉज व्हाट्स हैपनिंग इज लाइक, यू नो, इंस्टा रील्स पे वो देखते हैं कि ऐसे है जो कि ट्रू भी है समवेयर, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग हार्ड एंड यू आर बेसिकली promoting yourself, है ना, promoting in the sense not कि socially or something, but एक promotional sense में, है ना, कि अगर आप upgrade कर रहे हो खुद को time के हिसाब से, earn ज़्यादा कर रहे हो, आप facilities ले रहे हो, that's the plus point, है ना, जो मेरे को दिखता है, because I've been here like that long and I feel कि with time you learn and you grow. Yeah, and you can achieve everything, right? True. But अभी आपको क्या लग रहा है कि like इन 3 साल में मतलब how was it so far? So far it's going good, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें इन 3 सालों में सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें अडेप्ट करी हैं जो मैं पहले थी और अब के में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. इन माई नेचर, in my nature, in my sense of talking to people, in my living style also. I used to be very kiddish kind of, जो कि normal है, like जब बच्चा आता है they are like very immature. Exactly, of course. Yeah, that's true. तो वो बहुत immature होते हैं. मैं भी immature थी, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को लोगों का नहीं पता, मेरे को पैसों का हिसाब नहीं है, कैसे करें, हमें मनी मैनेज नहीं करना, मनी मैनेजमेंट नहीं है. तो ये सारी चीजें एक कनाडा का ये अच्छा प्लस पॉइंट है कि ये चीजें आपको रहना सहना सिखाती हैं, क्योंकि इन दी एंड आप अकेले आए हो लाइफ में और जाना भी आपको, इवन इफ व्हेन यू गोना डाई, आई डोंट वांना यू नो मेक इट वेरी, व्हिच इज नॉर्मल, लाइक एट द एंड दिस वर्ल्ड इज इमॉर्टल, सो हमें जाना तो है, सो वी विल गोइंग अलोन, राइट? तो हमें वो चीज़ें सीखने को बहुत सारी मिलती हैं, बहुत सारे लोगों से डील करते हैं हम. वी मीट hundreds of people, thousands of people in this country, different type of people, you know? Right. I think in like, you know, just in a nutshell what we are trying to say here कि ना आप जैसे आपने बहुत ग्रो करा है ना, तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि यार कनाडा में कुछ नहीं है, वहाँ पे जॉब्स नहीं है ना, लाइक इट्स ट्रू. बट मेरे को लाइक, यू नो, मेरे मोर देन 7 years में ऐसा लगा है कि अगर एक 19 years का बच्चा कहीं पे भी जाता है, डजंट मैटर इफ दे आर फ्लाइंग टू कनाडा, इवन अगर वो लोग इंडिया से भी मतलब कहीं दूसरी इंडिया की स्टेट में जाते हैं बेसिकली, या फिर इफ यू आर इन सम अदर कंट्री बेसिकली एंड यू ना
travel to different country, right? Like it's a very basic thing कि जब आप 18 years तक के होते हो ना, you like not most of us travel, है ना? और हम जब ट्रैवल करते हैं, जितना भी हमने ट्रैवल करा वो पेरेंट्स के साथ करा है, दे आर पेइंग फॉर एक्सपेंसिव, राइट? लाइक यू डोंट इवन नो, हम वो वही कि हमें नमकीन चाहिए, बिस्किट चाहिए, राइट? लाइक दे पेइंग फॉर यू, सो यू नेवर नो कि कितना एक्सपेंस आया. तो मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक यू नो जो अभी बच्चों का माइंडसेट हो गया है कि कनाडा इज नॉट द बेस्ट. लाइक अगर आप कंपेयर करते हो, आई एम नॉट सेइंग इट्स द बेस्ट कंट्री, ऑफ कोर्स लाइक यू नो फ्लॉज होते हैं, हाँ जी, बट कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना बेसिक, वो ग्रोथ का ही पार्ट है. लाइक यू नो अगर आप 19 साल के बच्चा इतनी दूर आके, अब कोई इतना इजी नहीं हो सकता, और हमारा तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है बैक होम, राइट? लाइक वी डिडंट डू एनीथिंग, सिंपली, है ना? मतलब क्लास में जाते थे, मम्मी पापा खाना बनाते थे, पे करते थे अपनी चीजों को, व्हाट वी डिड, है ना? हम तो मजे मार रहे थे, राइट? और आई थिंक प्रॉब्लम वही है कि हमें वो मजे नहीं मिल रहे, वही हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही नहीं है. वो हमारी बॉडी ऐसी बन गई थी वहां पे. इतने यार 19-20 साल अगर हम एक जगह रहेंगे, है ना, एक फैमिली के साथ रहेंगे, तो ऑफ कोर्स अटैचमेंट इज देयर, होती है वो, राइट? बट वही चीज है ना कि जब हम कनाडा आ जाते हैं तो वो एकदम हम अकेले हो जाते हैं, विच इज नॉर्मल, राइट? क्योंकि लाजमी है ये होना भी, लोनलीनेस भी होती है, डिप्रेशन भी बहुत बच्चों को होता है, दे think of suicidal attempts, they go for other ways कि है ना, चल कोई पार्टनर ढूंढ ले, this and that. ये भी यहाँ पे बहुत नॉर्मल है, रियलिटी है. एग्जैक्टली, नो दैट्स ट्रू, एग्जैक्टली. बट यही है कि जब हम वहाँ रह रहे होते हैं, you are like you know your family members, you have your friends, you are so dependent on them. हाँ, यहाँ पे जब आते हो तो you are independent. खाना खुद बनाना, which is common thing कि खाना, लॉन्ड्री, काम ढूंढना, आपको कोई नहीं सपोर्ट करेगा, क्योंकि हर कोई बिजी है इधर. एग्जैक्टली. हर कोई यू नो काम कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है. इवन कि लोगों के पास भी ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया में होता था, जैसे एक बंदा बोल ले, हम एक पर्सन बोल ले, हम है ना, फादर होते थे, दे अर्न, और सारी फैमिली बैठ के खाती थी, और एक फादर होता था, वो लेने जाता था, एक ही गाड़ी होती थी घर में. और यहाँ एक घर में 4-4, 5-5, हर बंदे की अपनी गाड़ी है यहाँ पे. कई घर में एक गाड़ी भी नहीं होती, you know that, right? Like you know हम एक दो फैमिली मेंबर्स के साथ, like you know चाचा ताऊओं के पास एक कार होती है, ऐसे, मतलब I have seen it honestly, है ना? बट मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं yes you're right कि है ना वो चीज़ हमें नहीं मिलती. मतलब मेरे यहाँ पे 7 साल रहने का और सब कुछ देखने का, है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि जो हम अभी हो गए ना, we feel कि जो हम रील्स में देख रहे हैं ना, वो हम जाएं और हमें मिल जाए. सही बात है. ठीक है, वी डोंट नो कि वो जो बंदे ने इतना स्ट्रगल किया है, चाहे वो इंडिया में किया या फिर वो यहाँ पे करा है, तो लाइक नो दे हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लाइक नो उन्होंने इतने टाइम स्पेंड करा. अगर आप 3 साल में खुद में इतने सारे चेंजेस देख पा रहे हो, है ना, एज अ पर्सन, या फिर व्हाटएवर वे यू लुक एट इट, राइट? तो आप ये देखो कि विद द टाइम यू आर ग्रोइंग, एंड दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट. एंड आई थिंक कि अगर मैं खुद को इंडिया में 26 एज के लोगों के साथ कंपेयर करूं, आई फील grateful that you know I'm it's not that I'm feeling better because I'm doing better, no, because I can see myself as a person, है ना? जो चीज, जो humbleness, जो kindness, जो maturity आपके अंदर अकेले रह के और ये सब चीजें फेस करके आते हैं ना, वो आपके अंदर वो नहीं आ सकती अगर आप if you're surrounded with people and family all the time, right? Like those fluctuations, yes, it's part of life again, right? तो मतलब मेरे जो मेन है वो यही है कि यार न्यू स्टूडेंट्स don't get demotivated, है ना? I know jobs are not just like you know waiting for you, of course not, because we don't have any experience at the same time, right? True. और उस चीज का एक और भी चीज है कि उसका सोल्यूशन है. सोल्यूशन मतलब आप कहीं ना कहीं वॉलंटियर करके देखो, राइट? लाइक जस्ट ऑफर व्हाट यू हैव, लर्न न्यू स्किल्स, है ना? तो वो चीजें करो. और मेरे ख्याल से यार I don't like see कि इतना भी बैड टाइम है. अगर हम यही ब्रैम्पटन या सरी में जाते रहेंगे, then there is, सही बात, ठीक है, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा है और डिमांड एंड सप्लाई कम है, अगर हम उस चीज में बात करें, राइट? तो इफ यू वुड लाइक टू ट्रैवल मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कनाडा, ऑफ कोर्स, राइट? तो वहाँ पे बहुत बेनिफिट्स है, लाइक यू नो. सही बात है. Why not? Yeah, I believe you are absolutely right. I agree on like 99% of your, you know, what you said. I would like to cover that 0.01. like, okay, 100%. So ये मेरे को ये चीज लगती है कि जैसे इंडिया में चलो हम रहते हैं अब कनाडा में, राइट? बट द थिंग इज कि इंडिया में हम
लाइक यू नो सराउंडेड बाय आवर फैमिली, उनका वो 40-50 इयर्स के हैं, उनकी अपनी एक्सपीरियंस है, उनका अपना टाइम था। जो ये अब टाइम चल रहा है 2024, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, नहीं यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, हम अभी सोशल मीडिया वाले हो गए हैं, हम रेदर देन वी टॉक टू पीपल वी जस्ट कॉल देम, और तो वो हमें कभी वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे वो चीज़ें। इवन कि हमारे अभी भी पेरेंट्स हैं, मेरे तो मतलब यू नो माय पेरेंट्स आर लाइक यू नो दे स्टिल डोंट नो द फीचर्स ऑफ द फोन, दे डोंट नो द होल थिंग्स दैट वी कैन डू, यू नो वी नो, व्हिच इज यू नो द फैक्ट कि वो हमें ऐसी ही चीजों में फील करते हैं कि हमारा बच्चा भी हमारे जैसा ही हो, which cannot be happening। ये पेरेंट्स को भी ये चीज समझनी चाहिए। आई थिंक फर्स्ट थिंग यहाँ पे आ जाती है अडेप्टेबिलिटी की, है ना। अगर यहाँ पे बच्चे इतने टाइम से हैं तो ऑफ कोर्स दे आर गोना अडेप्ट न्यू थिंग्स, है ना। और फिर वो जनरेशन गैप आ जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज आ जाती है कि इंडिया में आप जब आप फैमिली के साथ हो, यू आर लाइक यू नो लिविंग इन अ डिफरेंट लाइफस्टाइल, एंड जब आप अकेले आते हो देन यू फिगर आउट कि व्हाट्स योर लाइफस्टाइल बेसिकली, राइट। आई बीन लाइक यू नो टू इंडिया रिसेंटली, तो मैं वो चीज देख सकती थी, लाइक इट्स फन, इट्स वेरी गुड, क्योंकि सभी लाइक यू नो दे काइंड ऑफ पैम्पर यू, है ना, कि आप इतने टाइम के बाद आए हो, एंड घर का बच्चा रहता, डजंट मैटर आप कितने बड़े हो, है ना। एग्जैक्टली। तो फिर वो चीज कहीं ना कहीं आ जाती है, बट आई थिंक ना यहाँ पे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा पार्ट आता है। तो द थिंग दैट यू आर सेइंग कि एंग्जाइटी होती है या फिर डिप्रेशन होता है बच्चों को, राइट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप यहाँ पे नई जगह पे आए हो, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर, यू आर ट्राइंग टू गेट टू नो योरसेल्फ, है ना, बिकॉज यू आर बिल्डिंग योरसेल्फ एट द सेम प्लेस। तो तब उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बहुत बड़ा पार्ट आता है। इफ दे आर अंडरस्टैंडिंग देयर किड, है ना, वो इतना मतलब कॉन्फिडेंस रखें अपने बच्चे पे, और बच्चा भी सेम चीज करे, है ना, दे डोंट प्रूव देम रॉन्ग, बिकॉज दिस इज वेयर द बिग प्रॉब्लम कम्स गाइस। तो आप लोगों को मतलब मेक श्योर करें कि हाँ, अगर आप इतनी दूर आ सकते हो, अपनी कंट्री छोड़ के आ सकते हो, देन व्हाई लाइक व्हाई नॉट, एग्जैक्टली। और एक थोड़ा सा एक टॉपिक टच करेंगे जो हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, राइट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि it is okay, it's good, but it should not be because you're alone, ठीक है। हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो अकेले आते हैं। लकीली आई वाज हियर विद माय कजिन्स एंड ऑल, ब्रदर एंड एवरीबॉडी, राइट। पर मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप रियल में रिलेशनशिप की देखो ना क्या है वो, देन यू एंड इफ यू फील कि यस दिस पर्सन कैन बी देयर, है ना, एंड दैट पर्सन कैन बी योर पार्टनर, देन वी शुड डू इट। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को ऐसा लगता है कि कनाडा में जो कैनेडियन लोग हैं ना, they are very friendly, they are very welcoming, like you know have you seen कि इंडिया में जब आप इंग्लिश बोलते होते थे हम स्टार्टिंग में, तो like अपने खुद के फ्रेंड्स एंड नेबर्स हंसते हैं कि उसको इंग्लिश like you know what I mean, even कि कोई एक्सेंट भी थोड़ा सा कर देना, हाँ ऊपर नीचे हो जाए ना, like you know they literally laugh, yeah they literally laugh, और they feel कि यार ये तो you know एक्सेंट मार रही है, एक्सेंट नहीं बन रहा, this and that, एटलीस्ट वो बंदा ट्राई कर रहा है, you know they want to speak, they want to learn, right। and या मतलब कनाडा में क्या है कि जब आप डिफरेंट प्लेसेस एक्सप्लोर करते हो ना, लाइक इफ यू गोइंग टू डिफरेंट स्मॉल टाउन्स, राइट, वहाँ पे यू नो कि सैटरडे संडे फन होता है, राइट। तो इट्स नॉट अबाउट कि गलत लेवल का फन और नथिंग लाइक दैट। जो कैनेडियंस होता है ना, दे आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आप उनके साथ एंजॉय करो, उनका कल्चर अडेप्ट करो, सो लाइक यू नो देयर आर वेज टू गेट आउट फ्रॉम दैट डिप्रेशन, या फिर लाइक यू नो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये एक फ्रेंड है तो लेट्स गेट इनटू रिलेशनशिप, राइट। कुछ वो एज ऐसी होती है, हमें नहीं पता होता कि व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग, एंड देन वी आर लाइक यू नो हमारे बैक होम इतने पेरेंट्स भी ओपन नहीं होते कि यस लाइक यू नो कोई बात नहीं, देख लेंगे ना। देन इन दैट सिचुएशन मोस्टली गर्ल्स तो स्टक हो जाती हैं, लाइक व्हाट आई हैव सीन in Brampton and like you know those cities. Yeah, for sure. Even ki right now I'm living in Brampton, so I know most of the part like of these kind of stuff, है ना, कि लड़कियों कैसे वो रह रही है. I have seen a lot of girls, they are being in that toxicity thing, but वो मजबूरी में रह रही हैं या कोई problem है, I don't understand that. A lot of girls है ना वहाँ से marriage कराती हैं, they come here and still they are you know into that, they are not understanding the importance of marriage. और मैं like I'm not being judgy here, everybody have their own life, सबकी अपनी life है, we cannot be like judgy, but the thing is कि you are playing with two lives on the same time, you are playing with yours, your husband, जो like इसी वजह से बहुत सारी न्यूज़ भी आई हैं कि है ना पीछे बैक होम में ऐसा प्रॉब्लम्स हुई हैं, राइट। आई थिंक अर्पण यहाँ पे ना काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अभी इंडिया में हमने सुना था कि लड़कियां जैसे जो यहाँ पे आती हैं ना, शादी करवा के आ गई, उनके पेरेंट्स की वजह से शादी कर ली उन्होंने, राइट, दे डोंट इवन आस्क,
दे फील कि पैसे पे कर देंगे व्हाटएवर, है ना। तो मेरे को लगता है कि ये जो पार्टनर वाला है तो ना, ये तो बढ़िया, मतलब बहुत बड़ी चीज है, लाइक यू नो, नो वन कैन जस्ट डू इट फॉर फन और मनी और एनीथिंग, बिकॉज जब आप फुली मैच्योर होते हो आपको रियलाइज हो जाता है कि व्हाट इट मीन्स टू यू, है ना। और फिर वो काफी डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है। आई डोंट थिंक वो इतना इजी स्टेप है, लाइक वो पेरेंट्स के लिए भी है और वो मतलब बच्चों के लिए भी है, लाइक इट्स फॉर बोथ बेसिकली। बट जहाँ तक वो 7 साल एंड 3 साल की बात आती है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, आई वुड लाइक टू से कि उनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। दे रियली नीड टू एक्सप्लोर एंड दे नीड टू मेक श्योर कि वो लोग खुद को कैसे बिल्ड करें, राइट। लाइक यू नीड टू लर्न न्यू स्किल्स, राइट। इवन दो आई हैव बीन हियर लाइक दैट लॉन्ग, व्हाट आई ट्राई इज लाइक व्हाट एल्स आई कैन लर्न, राइट। इट्स नॉट अबाउट कि आप एक चीज पे स्टिक नहीं कर रहे हो, नो इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। व्हाट इज इट कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। And you give it time, you give it your focus, and you build yourself, right. So I have enough options, like you know what I really want to do, and I'll just continue with that. But ऐसा नहीं है कि इंडिया में मैंने कुछ नहीं सीखा या फिर यहाँ पे आके मैंने कुछ नहीं enough experiences किया, right. तो मतलब वही है यार, लाइक इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट नेगेटिव साइड्स कि हमें जॉब कॉल्स नहीं आ रही, आई थिंक लेट्स सी कि लाइक नो ऐसा कुछ सीख लेते हैं जो बहुत ही डिमांड में है ना, डिमांड में भी है एंड आप कर सकते हो, व्हाई नॉट। हमें जरूर अभी फैक्ट्री में मेरे को नहीं लगता कि पीपल लाइक टू वर्क इन फैक्ट्री, है ना। एनवायरनमेंट ही नहीं पसंद मेरे को तो वहाँ का यार ब्रो। द रीजन आई लेफ्ट फैक्ट्री, जब मैंने फैक्ट्री छोड़ी थी, तुझे पता है महक, आई लेफ्ट एंड आई मेक अ वीडियो ऑफ सेइंग अब मैंने ही नहीं करना। आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि अब मैं वो नहीं काम करूंगी, फैक्ट्रियों को मैंने अलविदा हमेशा के लिए। आफ्टर दैट आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ, आई केप्ट माई प्रॉमिस, मैं नहीं गई फैक्ट्रियों में, क्योंकि चाहे मुझे घर पे बैठना पड़ जाए बट मेरे से नहीं होगा वो एनवायरनमेंट मेरे। आई डोंट ब्लेम एनीबडी जो फैक्ट्रियों में, नो ऑफेंस टू देम, वो ऑफ कोर्स दे आर वर्किंग हार्ड, मे बी उनकी भी मजबूरी और नहीं ऑप्शंस हैं, बट दे कैन स्टिल, इवन इफ यू आर इन अ फैक्ट्री, तो यू नेवर नो आपको कब निकाल दिया जाए। आई वाज बिल्कुल दैट पॉइंट कि जब वर्कलोड कम हो गया था, आई वाज किक्ड आउट, even if I worked hard, but still, you know, there are some politics going on in the factory, especially when you are in a Brampton. Job is the job, ठीक है। जब उनका पर्पस डन हो गया, they can kick you out anytime. Of course, simple. चाहे आप यहाँ पे काम करो, चाहे यहाँ पे काम करो, simple is that, ठीक है। आप अपनी इमेज बना सकते हो, आप अपना काम शो कर सकते हो, बट जॉब के बारे में एक हार्श ट्रुथ यही है कि कभी भी if they're done, they're done. That's 3 it. 3 W's, work, weather, woman, ये बहुत पॉपुलर है। ये बहुत पॉपुलर है कनाडा में, वर्क, वेदर, वुमेन, सो यू नेवर नो, ये तीनों कभी भी दिखा दे सकते हो। बट आई वुड लाइक टू से not just women, it's about men too. Men too. अब तो men M भी हो जाएगा एक एड उसमें, exactly, men can also. मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये ब्रैम्पटन साइड एरिया है इसके लिए तो M बेटर है इंस्टेड ऑफ। अब ब्रैम्पटन वाले हमारे घर पे आके हमें पीटने वाले, बट मैं घर का एड्रेस नहीं बताऊंगी। So yeah, we were discussing about the life in Canada. Exactly. Being a student, जब मैं यहाँ पे आई थी मैंने बहुत सारी चीजें फेस करी, और मैं अपना एक एडवाइस दूंगी जो आना चाहते हैं, जो स्टिल यहाँ पे हैं। आई विल गिव माय स्मॉल एडवाइस कि पहले तो कुछ स्किल सीख के आओ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। कोई इफ यू नो ड्राइंग और यू कैन गो फॉर टैटू, इफ यू दैट्स व्हाट आई डिड गाइस। सो यू नो शी इज लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई लव दैट कि है ना एक ही चीज पे स्टिक नहीं कर सकते, जो आपको चीज अच्छी लगती है कि जहाँ पे मजा आ रहा है, यू नो तब तक करो, बिकॉज हम जॉब से भी कई बार फेड अप हो जाते हैं। मैंने फैक्ट्री में भी काम करा, मैंने सिक्योरिटी में भी करा, मैंने अब सेल्स में भी कर रही हूँ, यू नो डिफरेंट चीजें ट्राई करो ताकि लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे, यू नो कि 50 इयर्स एक ही जॉब में। एक चीज बताती हूँ, जैसे हम 19 के आते हैं, राइट, तो हमें स्टार्टिंग में ना ऐसा होता है कि जस्ट कि हमें जस्ट जॉब चाहिए, तो फिर आप कोई भी जॉब कर लेते हो। तो मेरे को इतना मतलब 7 इयर्स में आई वुड से कि आई हैव डन 15+ जॉब्स, है ना, तो अच्छा इतना लगने लग गया मेरे को कि यार कनाडा तो अच्छी चीज है, अच्छी जगह है, क्योंकि मेरे को एक्सप्लोर कर पा रहे हो, क्योंकि मेरे को कोई डिग्री नहीं चाहिए ब्रो। सी आई एम वाचिंग यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, उनके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, चाहे वो मेरिट में काम करना है, चाहे वो बैंक में काम करना है, एंड आई हैव डन इट, राइट, लाइक एंड आई लाइक यू नो, मैं मतलब जस्ट अ फनी स्टोरी कि मेरे को ब्लेजर डालने बड़े पसंद थे, है ना, कि वो मेरे को चाहिए वाइट कॉलर जॉब चाहिए गाइस, अच्छा। तो मैंने वो मेरे को था कि जस्ट अब नेक्स्ट तो बैंक है, बैंक में एक तो था कि बड़े पैसे होंगे, है ना, जो कि नॉट द ट्रूथ एक्चुअली, या लोगों के पास थे, एग्जैक्टली, मतलब हाँ मेरे पास हमारे पास नहीं थे, राइट। तो मेरे को था कि अब तो ऐसी जॉब करनी है जहाँ पे मैं बैठूं बस, और लाइक यू नो आई मीट रिच पीपल, ठीक है, किसका नहीं होता, मतलब कनाडा में आगे होता है, राइट, या तो आई वाज
लाइक यू नो वो जॉब करनी है, एंड देन आई डिड प्रिपेयर फॉर दैट, एंड देन जो वहाँ पे काम करते थे लाइक बैंक में जो नॉन लोग थे, तो उनके साथ कनेक्शंस बिल्ड करना, तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आप लोग जितने अच्छे कनेक्शंस बनाओगे, एंड कनेक्शन शुड नॉट बी फेक। आई फील कि अगर आप एक जेन्युइन पर्सन हो ना, you can easily be with people, ठीक है, and you can easily disconnect at the same time, क्योंकि जहाँ पे आपको अपनी वैल्यू लग रही है, अपनी ऑनेस्टी जो हम बोलते हैं ना, जो कि बहुत रेयर हो गई है, I'll be, है ना, you know that based on your experience too, तो वो जो ऑनेस्टी आपकी है ना, आप उसको फ्रंट पे रखो, and then everything is there, ठीक है। अब बस ये चीज देखो कि आपको यस यहाँ पे आने से पहले स्किल चाहिए, फिर उसके बाद आपको अच्छे कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन के लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, you're not gonna find those sitting at your home, exactly right, like even like ऐसा नहीं कि लोग आएंगे आपको, हाँ जी सर जॉब ले लो, बैंक की आई है, exactly, it's not like that guys। so हम और एक और चीज मैं मेंशन करूंगी, जॉब्स की बात अब चल ही रही है तो right, कि हम सोचते हैं यार जॉब नहीं मिल रही, एक बंदे ने बोल दिया जॉब नहीं है, that's true, नहीं है, बट अगर आप में अंदर से एक वो है ना, एक फायर है ना आपके अंदर चल रही है जब तक कि मेरे को कुछ भी हो जाए, आई एम गोना फाइंड इट नो मैटर व्हाट, आप अपना एफर्ट डालो, बी कंसिस्टेंट, ये दो चीजें ही चाहिए हमें कनाडा में सक्सेस होने के लिए, एफर्ट्स और कंसिस्टेंसी। जॉब हो, पीआर हो, बिजनेस हो, कुछ भी किया जा सकता है, इवन इन लाइफ अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, सो ये टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, हम 4 दिन अच्छा रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, 5वें दिन जब हमारे इंस्टा पे कुछ आ गया फन, we keep scrolling, you know, that's the problem। मेरे साथ हुआ ये चीज, मैंने जब अपना स्क्रीन टाइम बैक पिछले 1 महीने का देखा, 8 hours 9-10 hours, yeah bro, you will not believe। और ये आज मेरा नहीं है, मैंने बहुतों का चेक करा है, मैंने अपने फ्रेंड्स का भी चेक करा, they have the same 9 hour 8 hour, I'm like what, everybody। और इंस्टाग्राम पे 3-3 4-4 घंटे they are spending scrolling and you don't even remember। वो स्क्रोलिंग तभी फायदेमंद है इफ यू रिमेंबर द लास्ट रील यू वॉच्ड। वन थिंग आई वुड लाइक टू से वन थिंग हियर कि ना, जैसे हम सोचते हैं नहीं ये मेरा यूजफुल है। अब मैं एक चीज बताती हूँ कि मैंने ना एक एआई का पेज देखा इंस्टाग्राम पे कि वो मतलब आपको फिटनेस गाइड करे, एआई है ना, तो आई वाज लाइक यू नो शी इज लाइक यू नो रियली बहुत अच्छा पेज था, बहुत अच्छे फॉलोअर्स, एंड देन आई वाज लाइक यू नो कि am I going to include this in my routine as of now? If the answer is yes, then of course follow, right? Otherwise it's not useful for me। सही बात है। So we really need to come back to our point कि what's your focus, what's your routine, right? अब ऐसा तो like बहुत कुछ है यार, like social media is like endless है ना, तो जब आप अकेले बैठते हो ना, like it's not even easy for us to focus, and that's the only key if we want to do something। जितने भी मतलब लोग हैं जिन्होंने कुछ अचीव करा है, yes they have very strong focus, concentration power, or they can focus very well, right? मेरे हिसाब से तौर पर यही है कि 7 साल में जो मैंने चीजें देखी है ना, अगर आप खुद को बिल्ड करते रहते हो ना, तो you really see the result। ठीक है, वही बात है, जितना आप एग्जाम के लिए रीड करोगे ना, स्टडी करोगे, उतना ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा। ये तो है। तो अगर हम स्टार्टिंग में ही अभी ऐसा फील करें कि वहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, तो वो चीज नहीं हो सकती यार। लाइक यू नो आपका माइंडसेट ऑलरेडी आप वहाँ पे चले गए हो कि क्या है वहाँ पे ना। नो डाउट कि यहाँ पे बेटर ऑप्शंस हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना है ना, बट यूएस में डोंकी जाके लगा के जाना, और वो दैट्स नॉट द बेस्ट चॉइस, राइट? लाइक एट द एंड ऑफ द डे आप तभी अर्न कर पाओगे जब आप कुछ हो। सही बात है। और 19-20 साल की एज में कोई कुछ नहीं होता, we all have to कोई भी नहीं होता यार, है ना, सिंपल सी बात है। और वो तो यहाँ पे आके बच्चा इतना अर्न करने लग जाता है, फिर तो मतलब इट्स अ बिग अचीवमेंट पेरेंट्स के लिए। लाइक यू नो अगर आप 20 लाख आप उन्होंने लगाए हैं, आप कवर कर पा रहे हो व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू डू, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि 19-20 साल का बच्चा इंडिया में भी कुछ नहीं करता, यहाँ पे भी स्ट्रगल के यू हैव टू गो थ्रू द स्ट्रगल। सही बात है, यू आर डूइंग इट, सो जस्ट डोंट कीप देयर माइंडसेट कि यार अभी तो कनाडा में कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक कहीं आपके लिए सामने गोल्ड नहीं रखा, ये डायमंड नहीं रखा कि आप उठाओ और भाग गए अपनी कंट्री में। सही बात है, सही बात है। तो मतलब वो चीज है कि यार जस्ट लाइक यू नो ट्राई योर बेस्ट, कीप लर्निंग, है ना। हाँ मेरे को लगता है कि इट्स नॉट अबाउट द प्लेस, इट्स अबाउट यू, कि आप उस प्लेस में कैसे सरवाइव करते हो। ये एक लाइक इसको टास्क ही लेना चाहिए हमें कि हमें एक टास्क मिला है, वी हैव टू गो देयर, वी हैव टू हैसल, हमें बहुत वो करना है, मतलब एफर्ट डालना है। फ्रीडम मिली है यार, सबसे बड़ी चीज है यार, फ्रीडम मिली है इतनी। कुछ भी इफ यू वांट टू वियर, अगर आपके कुछ ड्रीम थे, आपको कुछ बनना है, तो नाउ यू कैन, लाइक यू नो इवन
और फिर वहाँ पे होता था कि पेरेंट्स की निगरानी में यू आर ऑल द टाइम, यू नो, दैट्स विद एक्चुअली दैट्स अ गुड थिंग यार गुड थिंग भी है, बट द थिंग इज कि पता है क्या, अपने पेरेंट्स केयर ऐसी होती है कि बच्चों को ना ग्रो नहीं बच्चा कर हाँ ही नहीं वो पाता, वो ठीक अलग है? टाइप की केयर है वो वो ग्रो ना अच्छा होने वो एक ना वो एक बबल है हाँ जी, हाँ मेरे को बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल उसमें है। ना बच्चा प्रेशर में आके, अब कुछ कोई बच्चे गेमिंग पसंद करते हैं, वो गेमर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे कुछ है ना कुछ और, बिल्कुल अब किसी को धक्के से बोलना कि यार इंजीनियरिंग पॉपुलर चल रही है, सोसाइटी विल एक्सेप्ट द बिल्कुल है, इंजीनियरिंग बिल्कुल है, पार्ट, एग्जैक्टली या तुम डॉक्टर बनो, राइट दो चीजें होती थी एक राइट। टाइम पे, तो एक यू चीज नो। बताती हूँ, जब जैसे मैं यहाँ पे आई है ना, तो मेरे को जिस टाइम अभी 7+ ईयर हो गया, राइट? तो पीछे ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप कोई भी जॉब कर सकते हो, राइट? या अभी आपको कुछ भी करना है, यू जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ एंड यू विल गेट इट, ठीक है? अगेन हम लोग कंपनीज की भी बात करें गाइस, हम जस्ट ये नहीं बात करें कि आप बेसिक्स जॉब में ही पड़े रहो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विद टाइम यू शुड ग्रो, है ना? आप सही अपने बात है। सर्कल अच्छे बनाओ, अपनी मतलब कनेक्शंस अच्छे बनाओ, खुद को भी मतलब करो कुछ कि आपको हाँ बंदा इंटरव्यू के बाद या सिलेक्ट करे, है ना? सही बात है। तो वही बात ये है। चीज भी है, हाँ हर जी, साल एक हाँ टारगेट जी, रखो, जैसे आप हाँ जी, कनाडा में नए आए हो या हाँ आपको जी, 3 साल हो गया, आप अपने आप को उस दिन से कंपेयर करो जब आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बिल्कुल 3 साल हुआ, मैं अपने आप को फर्स्ट डे से फर्स्ट डे से कंपेयर करती कंपेयर हूँ करते अब हो, के दिन, देयर इज एग्जैक्टली, अ डिफरेंस। यू फील इट तो योरसेल्फ, मेरे को राइट? वो फील होता है कि यार मैंने ये चीजें अचीव कर ली हैं, हाँ जी, ये बाकी हैं, हाउ आई कैन डू दैट। सो एक एग्जैक्टली। टारगेट रखना चाहिए बंदे को एक कि और भी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, ना, वो फोकस होना चाहिए बंदे की लाइफ में कि मेरे को बिल्कुल, ये अचीव करना है, ये करना बाकी है, चीजें साइड में है, वो आती रहेंगी, आती जाती हम्म, रहेंगी, दोस्त आते जाते रहेंगे, रिलेशंस आते जाते रहेंगे, बट बिल्कुल। मेन मेन जो प्रायोरिटी, की है वो आप जो हो, प्रायोरिटी है उस हाँ चीज जी, को आप रखो उधर, रेदर देन हम्म, कि ना जस्ट उसको लाइटली नहीं लो, क्योंकि आप लाइटली लोगे फिर जो ऊपर वाला है बैठा देने वाला वो भी लाइटली लेगा, कोई नहीं आराम से यू नो बाद में दे देंगे नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर, सही यू नो। बात है, नहीं नहीं दैट्स ट्रू यार, एग्जैक्टली। बट वही है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब एट द एंड ना सीखना है यार, या इट्स उसका कोई लर्निंग, वो होता लाइफ नहीं इज ऑल है, अबाउट लर्निंग ठीक यार। है, सिंपल सी बात। अब मेरे को या ऐसा लगता है कि जैसे हमने बेशक इतना सीख लिया, कोई भी लिमिट ही नहीं है, नहीं लिमिट, सही ठीक बात है? है। और वो जो आप आज सीख लोगे बेटर है, नहीं फिर आपको कल सीखना पड़ेगा। जब तक आप नहीं सीखोगे वो आती रहेगी, चीज़ आती चीज रहेगी, आती रहेगी, चीज़, है सही ना? बात है। कि लाइफ के तो कोई लेसन नहीं है स्पेसिफिक, हम्म मतलब वो आप सिचुएशन के हिसाब से, और वो सिचुएशन आती भी आपको टीच करने के लिए है ना? हाँ तो वो सही चीज़ हो बात है। जाती है। तो अभी यहाँ पे आके अपना इतना साल हैसल करते रहो, या और फिर जब आप देखते हो ना, लाइक वी फील प्राउड, है ना? बट अनलेस कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, तो डिस्ट्रैक्शन के टाइम पे आप अपने, बस वही चीज़ है कि अपने रूट्स को याद रखो, या क्यों आए हो इतनी देर, ये याद रखो, हम्म व्हाट यू वांट टू डू वो याद हाँ रखो। हम्म ऐसा नहीं है कि आपको किसी जॉब में टेम्परेरी ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो आप करते ही गए, है ना? वो सही बात पैसे है, का जो लालच है ना, वो एक टाइम पे खत्म हो जाता है। खत्म हो फिर जाता है। आप वही फील करते हो कि यार मैं, मतलब यू नो, दैट्स नॉट व्हाट या आई वांटेड टू बी, है ना? सही तो बात उस है, टाइम पे आपको लगता है कि उस टाइम पे वो सिचुएशन हैंडल कर लेनी चाहिए थी। सही और वो बात है, तभी आता है कि जब आप फोकस्ड रहते हो, सही बात है। तो खुद के ड्रीम्स पे, खुद की अचीवमेंट्स पे, कि मैं हम्म क्यों आया था। और मेरे को बेस्ट चीज़ कनाडा की ये लगती है कि यहाँ पे आपको लोग जज नहीं करते, ठीक है? हाँ ये चीज बढ़िया कोई है। आपको जज नहीं करता। सेकंड चीज़ है कि एक्सेप्टेंस है। हम्म मेक श्योर कि आपकी सराउंडिंग अच्छी है, तो या ठीक है। अगर आप यहाँ पे मतलब सेम एनवायरनमेंट में हो, और आप देखोगे कि लोग फन बना रहे हैं, या हाँ फिर लोग ट्रू नहीं है, सही बात है। ऑनेस्ट नहीं है ना? तो वो चीज़ मत करो। हाँ अपना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छे लोग मिल ही नहीं रहे, बिल्कुल ही आपको या ऐसा लग रहा है कि यार मेरा तो मतलब स्टार्टिंग ही ऐसी हो रही है ना, जस्ट स्टे विद योरसेल्फ, है ना? सही बात है, स्टे विद द ड्रीम्स, स्टे विद द एफर्ट्स, है सही ना? बात है। विद टाइम यू विल गेट इट, लाइक यू नो, राइट, यू विल गेट देयर। तो सही सिंपल बात सी है। मतलब वो, मेरे हम्म को लगता है कि वो चीज़ काम करती है, बहुत ज़्यादा काम करती है। हम्म खुद में पोटेंशियल, खुद में फोकस, या और गाइडेंस, डिटर्मिनेशन, या एग्जैक्टली, या गाइडेंस भी ज़रूरी है। जब बंदा नया-नया आता हाँ है ना, जी, उसको गाइड करने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन उसको डिमोटिवेट करने हम्म, वाले दैट्स ज़्यादा ट्रू, होते बहुत हैं, ज़्यादा यू होते नो। हैं, वो बिल्कुल। कहते हैं यार तू गलत आ गया, यू नो। जब मैं नई-नई आई थी, वो सारे बहुत लोग सारे बोलते हैं लोग ना, मेरे को आए थे। एग्जैक्टली राइट। मैं ना इतनी हैप्पी है, मैं खुश हो रही हूँ ऐसे, यू नो, मैं आई वाज़ कनाडा आ फीलिंग गई। कनाडा आ गई, यू नो। तो या आई वाज़ लाइक कि बड़े मज़े से जा रही हूँ प्लाज़े पे, इवन इफ इट्स नॉर्मल फॉर देम। तो हाँ, वो बट बोल रहे आपके हैं अंदर तो कोई एक्साइटमेंट बात है नहीं, ही है, दे वर यस। लाइक, यू नो, लिटरली सेइंग कोई बात नहीं यार, थोड़े टाइम के बाद तेरे को ये चीज़ें नॉर्मल लगेंगी, यू नो। मेरे को वो डिमोटिवेट करने की कोशिश करी गई, व्हिच इज़ लाइक ओके, क्योंकि हर एक बंदा अलग अपना है, है, यू नो। हाँ जी, हाँ जी। इवन कि अब मेरे को भी एक नॉर्मल पॉइंट लगती पे है, बट स्टिल, हाँ जी,
सो ना हमें जो भी चीज़ें आई बिलीव जो मिल रही हैं वी हैव टू बी ग्रेटफुल फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमें भगवान ने दिया है। वी आर लिविंग ड्रीम ऑफ सो मेनी पीपल, है ना। बहुत लोगों का ड्रीम है कनाडा आना, बहुत लोगों का ड्रीम है गाड़ी लेना। अगर आपके पास है एटलीस्ट शो द ग्रेटिट्यूड टू द गॉड रेदर देन कंप्लेनिंग ऑल द टाइम्स, है ना। और सेकंड चीज हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम अर्पण वन थिंग है ना कि पता है क्यों वो क्यों आती है जब हम ग्रेटिट्यूड नहीं फील कर सकते, राइट। जब हम प्रॉपरली चीजें प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नहीं करते, ठीक है, व्हेन यू डोंट प्रायोरिटाइज योर थिंग्स, है ना, एंड यू जस्ट रैंडमली आप कोई भी स्टेप ले लेते हो, तो वो प्रॉब्लम बहुत आती है। मतलब बच्चों को पता होना चाहिए कि वहाँ पे उनको पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने चाहिए, कहाँ पे स्पेंड करने चाहिए, ठीक है, कहाँ पे आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, कहाँ पे आपकी स्किल की वैल्यू होगी, कैसे लोगों में आपकी वैल्यू होगी, तो वो सारी चीजें वहाँ से आती हैं। सही बात है। तो वही सर्कल मैटर बहुत करता है, राइट। मेरी स्ट्रेटजी रही है शुरू से इट्स फनी। हाँ जी। तो मेरा ये कि लाइक है ना, आई यूज्ड टू बी, जब मैं नई आई थी तो मेरे को नहीं कुछ पता होता था, गाइडेंस भी नहीं थी, बट जैसे जैसे मैंने चीज़ें अपने देखी तो मेरे को लगता है कि हमें दोस्त जो बनाने चाहिए या सर्कल अपना बनाना चाहिए, एटलीस्ट हमें एक स्टेप ऊपर वाले जो पर्सन है उनसे बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं स्टूडेंट आई हूँ तो मेरे को वर्क परमिट वालों से थोड़ी बॉन्डिंग भी रखनी चाहिए, उनका वेलकम करना चाहिए। एटलीस्ट दे कैन टीच यू कि है ना कि तू ये कर, तू वो ना कर, तू यहाँ पैसे लगा, यू दे कैन टीच यू लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप सेम फेज पे हो तो आप सेम पेज पे हो, तो आप फॉर एग्जांपल अब मैं लर्निंग के लिए अच्छा नहीं है वो लर्निंग के लिए अच्छा नहीं है। लर्न करना है ना लाइफ में, अगर कुछ सीखना है और अगर गलतियां अवॉइड करनी है, बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, अवॉइड करनी है ना, तो एटलीस्ट एक स्टेप जो ऊपर है आपसे, उनके साथ सराउंड योरसेल्फ। एग्जैक्टली, सराउंड योरसेल्फ विद इंटेलेक्चुअल पीपल, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल who are experienced. Exactly. That's the main word, experienced. They can tell you where to go, where to invest, where to. So smart advice. Actually, yeah, that's so true. Honestly, पता है क्या, एक्चुअली बात वही है ना कि जब जैसे अभी न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, राइट, उनको क्या होता है कि यहाँ पे मेरे सर्कल के ऑलरेडी लोग हैं, मेरी सिटी के ऑलरेडी लोग हैं, है ना, तो वो कंफर्ट लेवल ढूंढते हैं, ठीक है। जब आप ग्रो करते हो ना, घर वाली बात ग्रोथ में, हाँ एग्जैक्टली, तो ग्रोथ में कंफर्ट नहीं आता, ठीक है। ग्रोथ का मतलब ही यहाँ से उठ के यहाँ पे जाना है, ठीक है। वो यहाँ पे जो आप फील कर रहे हो ना, वो अगर यहीं पे आएगा, फीलिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो अचीव करने के लिए आपको यू हैव टू गो थ्रू, है ना। सही बात तो वो चीज हो ही नहीं सकती कभी कभी तो हमें अपने बहुत करीबियों से भी डिटैच होना पड़ता है इफ यू वांट टू ग्रो, क्योंकि वो करीबी आपको अच्छे लगेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, they're not able to see what you're saying. That's the problem, right? तो वो आपको कहीं ना कहीं अगर आप कुछ करना भी चाहते हो तो मजबूरी में फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ बैठ के, फॉर एग्जांपल यू आर लर्निंग समथिंग, पढ़ रहे हो आप, पढ़ना है आपको, बट वो आपको कह रहे हैं यार आजा, कोई ना, इधर आजा, उधर चलते हैं, इधर चलते, तो आप मना भी नहीं कर सकते। तो आपको ना कभी कभी दुनिया से डिटैच होके ना अपने आप को यूनिवर्स से भी अटैच करना पड़ता है, तो वो चीजें बहुत बड़ी बात है। सो जब आप सीधा परमात्मा से बात करते हो ना, गॉड से अटैच हो जाते हो, तो आपको लगती नहीं जरूरत, हमें लगती है। मेरा एक पॉइंट था लाइफ का जब मेरे को लगता था यार मेरे को दोस्त चाहिए, आई एम फीलिंग सो लोनली, आई एम फीलिंग सो डाउन, दिस एंड दैट, पर जब मैंने अकेला रहना शुरू कर दिया ना, मैं अकेले खाना बनाना, वो अंदर से जो सुकून है ना, वो अंदर का सुकून है, क्योंकि यार कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी की टेंशन नहीं है, कहाँ है, कौन है, किधर है, तो वो अकेलापन ही वो मेरी लाइफ का हिस्सा ही बन गया कि ठीक है। एक्चुअली मतलब ये बेस्ट चीज है अगर आप इसको पॉजिटिवली लो, है ना। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसको डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, सो अलोन, है ना। तो वी नीड टू सी आवर वैल्यू। अगर आप इस अकेलेपन के टाइम में खुद की वैल्यू देख लेते हो ना, देन यू आर बिकमिंग योर बेस्ट। सही बात है, सही बात है। जब अगर आप खुद की वैल्यू नहीं देखते, देन यू फील कि ओ आई एम अलोन एंड बट आई डोंट नीड एनीबॉडी। सही बात है। और वो एटीट्यूड अलग हो जाता है, वो ग्रेटिट्यूड नहीं, वो एटीट्यूड अलग हो जाता है। देन दैट्स द थिंग, है ना। तो आई थिंक वही है कि मेन चीज हम टाइम के साथ यार खुद को मतलब इतना ही वही स्ट्रॉन्ग रखो, वही देखो कि आप कहाँ से कहाँ तक आ गए हो, कहाँ पे आपको जाना है। जब आपको वो ड्रीम्स याद आएंगे ना, जो सोते हुए देखते थे अपनी गाड़ियों के, बंगलों के, दिस एंड दैट, है ना, देन यू जस्ट नो कि यार कितना सफर अभी बाकी है, कितना कुछ बाकी है ना। मैं आई वांट टू आस्क समथिंग कि व्हाट लाइक व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मीनिंग ऑफ रियल मीनिंग ऑफ फोकस। यार फोकस पता है क्या चीज होती है, एक चीज बताती हूँ। हम बहुत पॉडकास्ट देखते हैं ना, लाइक मैं रणबीर अलाहाबादिया को बहुत देखती थी, है ना। तो फोकस ना एक चीज होती है कि अगर इफ आई एम जस्ट लुकिंग और इफ आई एम जस्ट बीइंग प्रेजेंट हियर, ठीक है, आई एम जस्ट बीइंग प्रेजेंट,
ठीक है। जो आजकल का टाइम है ना, वो हमारा माइंड एक टाइम पे 5 जगह पे है, माइंडफुलनेस है ना। हाँ, बिकॉज या आई मीन लाइक बीइंग माइंडफुल, यू कैन से दैट, राइट। तो मैं अभी बाहर के बारे में सोच रही हूँ, मैं अभी उस दोस्त के बारे में सोच रही हूँ, मैं अभी सोच रही हूँ कि ओ ये इतनी सारी रात हो गई है, मेरे को जाना है, राइट। मतलब व्हाट आई एम डूइंग, आई एम नॉट प्रेजेंट हियर, और वो जो चीज हो गई ना आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा रेयर हो गई है। लाइक वी ऑल आर स्ट्रगलिंग, वी ऑल आर मेडिटेटिंग, वी ऑल आर trying to do yoga and being surrounding with nature just so we can get our focus back. सही बात है, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो वो जो फोकस है ना, मतलब मैंने खुद ये चीज देखी है कि आपको देखो यूनिवर्स में ना बहुत सारे सब कुछ है यूनिवर्स में। आसमान में देखते हो तारे भी हैं, आसमान में देखते हो बादल भी है ना, बारिश भी है, रेनबो भी है, सब कुछ है ना। इट्स जस्ट कि व्हाट यू वांट टू लुक एट, है ना, ये और व्हाट यू वांट टू गेट सिंपली, है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि है सारी चीजें हैं, आपके ऊपर डिसाइड करते हैं कि आप कितनी शिद्दत से किस चीज को चाहते हो, ठीक है। और ये चीज जस्ट पार्टनर डायलॉग हो गया। हाँ एग्जैक्टली, है ना। बट ये सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं है, दैट्स द मेन थिंग, राइट। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब आपकी डेडिकेशन या डिटर्मिनेशन एक चीज पे लग जाती है ना, दैट्स कॉल्ड फोकस, ठीक है। कि ये तो मेरे को चाहिए, नो मैटर व्हाट। एग्जैक्टली, जो वो 17-18 साल में बंदा एक बंदे के पीछे पागल हो जाता है ना, वो फोकस हमें पूरी लाइफ चाहिए होता है, ना कि बस एक टाइम। सही बात है, ठीक है। वो बस उस पर्सन के लिए नहीं चाहिए, तो आपको थ्रू आउट द लाइफ चाहिए होता है। सही बात है कि व्हाट यू रियली वांट, व्हाट यू वांट नेक्स्ट, कैरियर पे चाहिए, एंड गोल्स ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट टॉकिंग कि आप प्रेजेंट को मत जियो प्रेजेंट को यार, बहुत अच्छे से जियो, है ना, जितना जी सकते हो उतना जियो, बट मेक श्योर कि आपकी लाइफ मीनिंगफुल है, दिस इज समवन यू वांटेड टू बी, है ना। किसी को देख के ऐसा नहीं है कि खुद की पर्सनालिटी बिल्कुल ही चेंज कर दो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिगर आउट हु यू आर, है ना, व्हाट यू कैन डू, like there is no limitation to that. This country can literally give you all the freedom. Positive mindset वो आपकी मर्जी है, आपको कितना पॉजिटिव रहना है, एग्जैक्टली। और फोकस्ड आप वो उसी चीज से रह सकते हो कि जब आपको पता है कि वेयर यू वांट टू गो नेक्स्ट, है ना। और फिर जब सफर दिखता है ना कि इतना लंबा सफर अभी बाकी है, तो यू डोंट हैव टाइम, है ना। और मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं महक कि जो ना नेगेटिव में भी हंस रहे हैं, मतलब स्माइलिंग एंड फेसिंग द स्ट्रगल एंड द मतलब है ना, मतलब उस फेज से भी निकल रहे हैं, तो वो खुश होकर निकल रहे हैं, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, है ना। अगर हम आज फॉर एग्जांपल भगवान ना करे कुछ हो भी जाता है, तो वो हम पे डिपेंड है कि हम उसको कैसे लेते हैं, रेदर देन बहुत मैटर करता है। कुछ लोग छोटी सी चीज को भी इतना बड़ा बना देते हैं, बिल्कुल, कि हाय यार आगे किधर आगे रो रहे हैं, ये दिस एंड दैट। मेरा भी एक फेस था वैसा। कुछ लोग ऐसे हैं कि इतना कुछ हो गया, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि उनकी लाइफ में इतना ही कुछ हो गया ना कि वो इतने ज्यादा स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, उनके लाइफ में इतने धोखे मिले उनको, फिर भी दे आर स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रेट, स्ट्रॉन्ग। तो हमें वो भी डिपेंड करता है कि हाउ मच पॉजिटिव वी आर टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स दैट वी आर हैविंग। सर्कमस्टांस जैसे भी हैं, हमारा माइंडसेट, हमारी जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो है वो वे है, वो बहुत मैटर करता है, rather than just complaining and complaining. We have to be positive. Either we are in Canada, either we are in India. जीना तो कहीं भी है, पड़ेगा ही, किसी भी कोने में जाके से गायब नहीं हो सकते. We have to live. It depends on ourselves कि हम रो के जीना चाहते हैं या खुश होके जीना चाहते हैं. Exactly, हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है. That's the main motto. और वही भी पता है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग स्टिल दे आर एबल टू कीप द स्माइल, है ना, तो वो आता है कि नजरिया कैसा है आपका, है सही बात है, और एट द सेम थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, बिल्कुल, है ना। तो मतलब देख कैसे रहे सिचुएशन के ऊपर, है ना, मतलब बुरा बोलने वाले भी बहुत हैं, अच्छा बोलने वाले भी बहुत हैं, बट आई थिंक खुद का नजरिया बहुत मैटर करता है। लेकिन किसी को शायद वही बात है, अभी कोई आपको देखेगा तो उनको बिल्कुल लगेगा कि यार नाइस, अर्पण की जिंदगी बढ़िया है, बिल्कुल है, सही बात है, ना, यू नो व्हाट आई मीन। तो बट वही चीज है कि हम वो चीज खुद के लिए तभी फील कर सकते हैं जब हम टाइम के साथ इम्प्रूव कर रहे हैं, एंड वो इम्प्रूवमेंट हम खुद नोटिस भी कर रहे हैं, और हमें नेक्स्ट स्टेप भी पता है, बिकॉज जब आपको नेक्स्ट स्टेप पता है, देन यू हैव द एक्साइटमेंट कि यहाँ से यहाँ पे जाना है, ठीक है, एंड यू आर फोकस्ड एज वेल कि आई नीड टू अचीव दैट, ठीक है, एंड व्हेन यू लुकिंग बैक एट दिस पॉइंट, लाइक तब आपको लगता है कि यस आई एम डूइंग समथिंग, ठीक है। तो आपको मतलब खुद के लिए वो प्राउड फील होना ना, वो भी बहुत जरूरी है, यू नीड टू एक्नॉलेज व्हाट यू हैव डन, है ना, बट वो उसी को पकड़ के नहीं रहना, उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए भी तैयार होना है ना, जो आगे है ना।
और ये बाकी जो सभी की लाइफ में जो भी फेजेस आते हैं वो लर्न करने के लिए है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि आपको जरूरी नहीं है कि सब यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। कई स्मार्ट चॉइसेस होते हैं, जैसे आपने भी बोला कि है ना कि फ्रेंड्स ऐसे बनाओ, लाइक व्हाई नॉट, लाइक सराउंड योरसेल्फ विद बेटर पीपल, इट्स नॉट अ सेल्फिश थिंग, Not इट्स जस्ट so, वेलकमिंग पीपल। exactly, and you don't forget your childhood friends. That never happens basically, right? Yeah. But surrounding yourself with people who have like more experiences or who are already there where you want to be with time, and why not, right? Like they would be able to tell you their struggles, and then yeah, मतलब I'll tell you one funny thing, पता नहीं ये कैसे आएगी out, but जब भी मैं किसी old persons को मिलती हूँ ना, जैसे they are more experienced than me, उनकी एज भी है, उन्होंने बहुत कुछ देखा है ना, जो हम जी रहे हैं वो तो काफी पहले जी चुके हैं, तो मैं ना उनको ऑलमोस्ट एक एवरी टाइम एक सवाल पूछती हूँ कि अगर मैं आप जैसे ना मैं ये फनी चीज है बट ये दैट्स अ गुड थिंग ना, तो मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आप और मैं अलग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उन्हें पूछती हूँ कि जब जो आप थे 21 वाले, जब मैं से 21 हूँ, तो आप खुद को कि आप क्या सजेस्ट करोगे खुद को, तो ना दे टेल मी, या फिर उनको मैं बोलती हूँ कि अगर मैं 21 की हूँ, मेरे को कुछ ऐसी चीज मतलब मीनिंगफुल चीज बताओ जो मेरे काम आए, तो दे ऑलवेज शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, कि यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन है, बट हमारा जरूरी है उन चीजों को भी जानना, तो वो बहुत मोटिवेट करती हैं वो चीजें ना। वो बोलते हैं कि लोगों को ज्यादा मत सुनो। एक चीज हम पता, एक चीज ये भी है कि हम बहुत दिल में रखते हैं कुछ, हम जैसे गिर गए, हम ये सोचने लग जाते हैं जाके, यार उसने भी देखा, यार लोग भूल जाते हैं चीजें, हाँ ना, ये चीज है, लोग रिमेम्बर नहीं करते। सो डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, डोंट थिंक कि वो क्या लोग क्या सोचेंगे, काइंड ऑफ थिंग। इट्स वेरी nowadays people are having so many thoughts in their mind, so all together connecting to the all together let's connect the dots कि जैसे कनाडा में more important चीज क्या है कनाडा में। I think वही चीज है main, first of all if you're planning to come to Canada, guys, don't have that opinion कि कनाडा में अभी कुछ नहीं रहा, हम पहले बहुत अच्छे थे। I know it feel like actually जब हम डाउन हो जाते हैं हम ऑटोमेटिकली फील करते हैं, चाहे हम यूएस में बैठे हैं कहीं भी हैं, इंडिया में भी वो चीज फील होती है। एग्जैक्टली, वो सिचुएशन आई, बट यू हैव टू बी स्मार्ट एट दिस सिचुएशन कि आप अच्छे से क्या कर सकते हो, राइट। तो अपना स्किल लर्न करना फॉर श्योर, ठीक है। जितने स्किल्स हैं उतने कम हैं, हमें नहीं पता होता कि मैं किस स्किल में बेटर हूँ, राइट। तो एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई यार, सही बात है। और नहीं कुछ तो सीखोगे, कुछ तो पता चलेगा खुद के बारे में, है ना। कुकिंग करना पसंद है, कटिंग करना पसंद है, व्हाटएवर यू लाइक टू डू, राइट। और उसके बाद मतलब मेन चीज स्टे फोकस्ड, है ना। लुक सराउंड योरसेल्फ विद नाइस पीपल, गाइडेंस जरूरी है, बिल्कुल। एक्चुअली आपने ये चीज काफी बार बोल दी कि गाइडेंस जरूरी है, फॉर श्योर इट्स इम्पोर्टेंट। अगर आपको वो लोग नहीं मिल रहे बाय एनी चांस, बिकॉज हम नई कंट्री में आए, वी नेवर नो अबाउट एनीबॉडी, राइट, लाइक विद टाइम यू गेट टू नो। तो तब तक खुद से सराउंड करो, लाइक व्हाट डू यू वांट टू डू, है ना। स्टार्टिंग में तो एक्साइटमेंट ही इतनी रहती है कि यार मैं कनाडा आ गया, है ना, कि पता नहीं क्या हो गया, सही बात है ना। तो वो चीज़ है कि आप खुद को ही इतना ज़्यादा रखो कि व्हाट यू वांट टू अचीव एंड व्हाट यू वांट टू डू, एंड अगर बाकी लोग थोड़े से आपको लेट बैक लग रहे हैं, देन डोंट वरी, इट्स ओके, वो उनका फेज है। आप में स्टिल वो एनर्जी है, वो स्टार्टिंग एक्साइटमेंट है ना, उसको यूज करो कि आप ट्रैवल करो, एक्सप्लोर करो इनफ खुद को, है ना, सराउंड करो अच्छे लोगों के साथ। बट अगेन यार, जॉब का जो छोटा सा इशू अभी रिसेंटली आ रहा है लोगों का, है ना, कि जॉब नहीं मिल रही। मेरे को लग रहा है वही है स्किल, यार स्किल करो, व्हाई नॉट, है ना। स्किल करो तो मिल जाएगी जॉब, है ना। खुद भी अगर दैट्स अ गुड थिंग, अगर इवन आपको जैसे लड़कियों को सैलून का काम आता है, मेहंदी लगानी आती है, तो दे कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर होम। बिल्कुल यार, कुकिंग करनी आती है तो घर से स्टार्ट कर सकते हो, आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना। जॉब इज लाइक कि जॉब ऐसी चीज है जैसे फैक्ट्री पे जाना, सिक्योरिटी करनी, उससे भी अलावा हटके स्किल सीखो। You can make tattoos things, you can learn tattoo making, उसमें भी अच्छा पैसा है। बिल्कुल। So मतलब अभी मैं इंडिया, मतलब मैंने एक्सटेंड करी टिकट, है ना, 1.5 मंथ की। वो वही रीजन था, मेरे को था कि यार मेरे को ड्राइंग पसंद है तो मैं टैटू क्यों ना सीखूं, राइट। डजंट मैटर यार कि मतलब मैंने 7 साल बेशक लगा लिए कनाडा में, बट आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि आई कैन डू इट, राइट। यू कैन डू इट। तो ऐसा नहीं है कि आपको इतना टाइम हो गया तो अब आप स्टक फील करो, आप कभी स्टक नहीं होते। यू जस्ट नीड टू सी कि व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट, है ना। आपको ये पसंद है, ये भी सीखो, सब कुछ करो यार जिंदगी में।
सही बात है, बोर होने का टाइम नहीं होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। लो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बिल्कुल है। ड्राइंग है, ट्रैवलिंग करो, थोड़ा एक्सप्लोर बिल्कुल, करो, है ना? हम कनाडा भी आके अगर हम एक लिमिटेड सी जगह वैसी लाइफ जी रहे हैं, वही हम कमरे में बैठे हैं। Last point and the most important या point is that just don't stay with your own community. Go out, explore. Sorry to say this. I know we feel like home, घर की बात. I know it feels या सुकून बहुत मिलता है. But if you need to grow, you need to get out from your comfort या level. You need to या keep in mind आउट फ्रॉम कि कंफर्ट। आप वहाँ से क्यों आए हो, ठीक है? अगर आपको वही चीज़ें चाहिए तो आप वहीं पे फाइन थे, ठीक है? सही बात है। So best चीज़ about Canadians and people from all around the हाँ, world, they're accepting you the way you are, ठीक है? And from their experiences, your या experiences, you can earn a lot and you सही can बात है। learn a lot. You can do both together, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे बच्चे they don't even need to get into relationship just because they're alone. No, that's not the या point. ट्रू। You need to explore. You need to go out. You need to see कि what do you really, why you came here, है ना? सही वो बात है। freedom का real मतलब यही है कि एक्सप्लोर कर सको सही बात पूरे है। टाइम को। Yep. सो इन कंक्लूजन हम इस पॉइंट पे आते हैं कि मेन पहले स्किल सीखो, हाँ जी, देन बिल्कुल। सेकंड पॉइंट इज surround yourself with the With- good people and intellectual people for sure, Right. just like Mehak. नहीं यार, Smart सभी people. yeah. No, I'm just okay. Bro, yeah, I'm like again, it's good, right? Yeah, Like it's you I mean need to be surround mindful. yourself with good Exactly. people. Yeah, At least जो आपसे थोड़ा एक कदम ऊपर हैं, they know the steps that you are gonna go through. They can exactly. teach you कि ऐसे step लेने चाहिए, ऐसे नहीं लेने बिल्कुल। चाहिए। तो क्योंकि मैंने बहुत सारे जस्ट शेयरिंग वन लिटिल स्टोरी, हाँ जी। बहुत सारे बच्चे से देखे हैं जो गाड़ी ले लेते हैं महंगी बहुत ज़्यादा, देन दे रियलाइज कि यार हमें गाइडेंस नहीं दी प्रॉपर। बिल्कुल। सो इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेगी? रेदर देन मेकिंग, Mortgage. और हाँ ये चीज़ इंस्टॉलमेंट मॉर्गेज Yeah, कुछ भी खरीदना है ना इन कनाडा, right. बहुत ज़्यादा सोच समझ के बिल्कुल। थिंक 100 टाइम्स ऑन बाइंग अ वेरी बिग थिंग। छोटी मोटी चीज़ तो हम ले लेते हैं, दैट्स फाइन। घर लेना, गाड़ी लेनी, बहुत बड़े बिल्कुल। स्टेप्स हैं घर तक तो बच्चे सोचते ही नहीं, that's the problem, right? Like 90% लोग सोचते ही नहीं घर तक। अभी टाइम नहीं है सोचने का। No, I know, like you are the right one. Main- You will do it on the main time. is But like मतलब yeah, you know what I mean, right? Like so, नहीं वो चलो एक अलग सिनेरियो हम हाँ कह जी। सकते हैं, Right. बट द थिंग इज कि कुछ भी बड़ा आपको करना है, स्टेप लेना है, अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है तो गाइडेंस ले लो, 10 बंदों से पूछ लो जो जानते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, दैट्स बेटर देन वेस्टिंग योर टाइम एंड योर मनी, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। Right. उसके बाद आता है हमारा मोटिवेशन। स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम, है ना? मोटिवेशन Exactly. इज द की to Stay focused. stay focused and Exactly. stay motivated And yeah, so motivation will come. and पॉजिटिविटी आपके अंदर से आएगी, कोई आप में नहीं ला सकता, कितना भी कोई कोशिश कर ले। बिल्कुल। अंदर से पॉजिटिव रहो, खुद को टाइम दो rather than giving time to a lot of people. But no worries, Exactly. it was all दिल की बात with महक and अर्पण के साथ, Right. and we covered a lot of topics today. But Exactly. also अगर आपको कुछ भी कंसर्न है, आपको कुछ शेयर करना है या आपकी कुछ Right. स्टोरीज हैं, तो वी आर हेयर टू लिसन। डोंट वरी कि हम सिर्फ सेलिब्रिटीज या कुछ बड़े लोगों से ही बात करेंगे। अगर Guys, आपकी it's all for you. That's it. सो अगर ठीक है? आपको भी Job कुछ शेयर student करना हो, है, exactly. कोई आपकी जो इंसिडेंट्स हुए हैं जो वेरी अनएक्सपेक्टेड है, हम भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते किसी के साथ हुआ हो, तो वी आर वेलकमिंग एवरीबडी। दिस प्लेटफॉर्म इज इन द एंड फॉर एवरीबडी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, प्रीशियस टाइम इन watching this Thank you guys. दिल की podcast. बात। Thank you so much with Mehak and Arpan. We will see you in the another podcast. If you have anything, leave your anything to say, leave your comments down below. Yep. And please like the video if you like it. And we'll see you next time. Thank All you. right. Thank you so much.